एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और जिस टॉपिक से हम स्टार्ट करने वाले हैं वो होगा सेक्शन 101 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। लास्ट के लेक्चर में हमने सेक्शन 100 पे अपना जो टॉपिक है वो कंप्लीट किया था। आज का लेक्चर काफ़ी प्रिसाइज और शॉर्ट रहेगा बिकॉज विल ओनली बी कवरिंग 5 सेक्शंस एंड देन डे आफ्टर टुमारो और टुमारो वी विल बी कंप्लीटिंग सेक्शन 106 के आगे। सेक्शन 105 ए से लेके आई थिंक के और एम, आई एम नॉट श्योर, के जो बीच के जितने भी सेक्शंस है दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट, कहीं भी नहीं पूछे जाते, so that is not something that we need to go through. Then section 101 deals with disposal of things found in search beyond jurisdiction. When an execution of a search warrant at any place beyond the local jurisdiction of the court which issued the same, any of the things for which search is made are found, such things together with the list of the same prepared under the provisions herein contained shall immediately be taken before the court issuing the warrant unless such place is nearer to the magistrate having jurisdiction therein than to such court, in which case the cases list and things shall be immediately taken before such magistrate, and unless there be a good cause to the contrary, such magistrate shall make an order authorizing them to be taken back to the court. Basically, अगर अब सर्च के ड्यूरिंग कोई ऐसी चीज़ है वो रिकवर की गई है कहीं जगह से, तो ये सेक्शन एम्पावर करता है जो मैजिस्ट्रेट है वो इंडोर्स कर सके वो सर्च वारंट, और जो वो लिस्ट तैयार होगा कि कौन कौन सी चीज़ें सर्च के टाइम पे रिकवर हुई हैं, उनका जो लिस्ट वगैरह बनेगा, या तो वो लिस्ट उस मैजिस्ट्रेट along with the things will be taken either to the magistrate who had issued the search warrant या वो magistrate जो nearest possible area या jurisdiction में fall करता है. Then D is miscellaneous. 102 of the criminal procedure code, power of police officer to seize certain property. Basically 102 जो CRPC का है वो पावर देता है पुलिस ऑफिसर को कि वो सीज कर सके कोई भी प्रॉपर्टी जो अलेज्ड है या सस्पेशन है उस चीज़ को लेके कि ये स्टोलन है, या वो चीज़ अंडर सच सर्कमस्टांसेस रिकवर की गई है जो थोड़े सस्पिशियस लग रहे हैं वो सर्कमस्टांसेस. ठीक है, तो इस सेक्शन के अंदर पुलिस के पास ये पावर है कि वो सीज कर सके वो वाली प्रॉपर्टी. Any police officer may seize any property, कोई भी property which may be alleged or suspected to have been stolen or which may be found under circumstances which create suspicion of the commission of an offence. ये subsection 1 है. जो seize word है उस पे काफ़ी सारी जजमेंट्स, इसकी इंटरप्रिटेशन, इस पे काफ़ी सारी जजमेंट्स हमारे एपेक्स कोर्ट की, हमारे हाई कोर्ट्स की हैं. बेसिकली सीज का मतलब होता है कि आप जो है वो किसी चीज़ की फिजिकल कस्टडी लो. ठीक है, फिजिकल कस्टडी अगर आप किसी चीज़ की लोगे उसको सीज लीगल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं. Such police officer, if subordinate to the police officer in charge of a police station, shall forthwith report the seizure to that officer. अगर अब कोई ऐसा पुलिस ऑफिसर रिकवरी कर रहा है या सीज कर रहा है कोई ऐसी चीज़, लेकिन वो जो पुलिस ऑफिसर है ही इज़ बिलो द रैंक ऑफ या ही इज़ नॉट द हेड ऑफ द पुलिस स्टेशन, तो वो इमीडिएटली किसको रिपोर्ट करेगा सच ए सीजर टू द जो उनके इमीडिएट सीनियर होंगे. ठीक है, या जो उस पुलिस स्टेशन के इंचार्ज होंगे. Every police officer acting under subsection 1 shall forthwith report the seizure to the magistrate having jurisdiction, and where the property seized is such that it cannot be conveniently transported to the court, or where there is difficulty in securing proper accommodation for the custody of such property, or where the continued retention of the property in police custody may not be considered necessary for the purpose of investigation, he may give custody thereof to any person on his executing a bond undertaking to produce the property before the court as and when required, and to give effect to the further orders of the court as to the disposal of the same. Basically simple and short एक ही बात बताई गई है. क्या है वो बात कि अगर कोई अब ऐसी प्रॉपर्टी वो इतनी बड़ी है या मुश्किल है उसको एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना, तो जो कोर्ट है वो रिलीज भी कर सकती है उस चीज़ को अंडर द कंडीशन कि भाई यू आर नॉट टू सेल दिस प्रॉपर्टी, या जब इस कोर्ट को ज़रूरत होगी
इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की, चाहे वो प्रॉपर्टी कोई सी भी क्यों ना हो, तो आप उसको प्रोड्यूस करोगे बिफोर द कोर्ट। ऐसा बहुत बार होता है कि गाड़ी किसी, फॉर एग्जांपल कोई ऑफेंस है तो गाड़ी सीज हो गई। अब जब गाड़ी रिलीज़ करवाते हैं तो उस टाइम पे आपको हमेशा एक अंडरटेकिंग देनी पड़ती है, और ये ऑर्डर में हमेशा नीचे मेंशन होता है कि यू विल नॉट सेल द पर्टिकुलर व्हीकल, एंड अगर फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए ज़रूरत पड़ेगी तो you will present forth the same, provided that where the property seized under subsection 1 is subject to speedy and natural decay, and if the person entitled to possession of such property is unknown or absent, and the value of such property is less than 500 rupees। प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? स्पीडी और नेचुरल डिके से वल्नरेबल होनी चाहिए, और जो पर्सन इंटाइटल्ड है उस प्रॉपर्टी की पोजेशन के लिए वो या तो अननोन होना चाहिए, एब्सेंट होना चाहिए, और प्रॉपर्टी का जो वैल्यू है दैट शुड बी लेस देन 500 रुपीज़। इस प्रॉपर्टी का ऑक्शन किया जाएगा बाय द अंडर द ऑर्डर्स ऑफ सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, and the provisions of 457 458 shall as nearly as may be practicable apply to the net proceeds of such sale। Then section 103, magistrate may direct search in his presence। Any magistrate may direct search to be made in his presence or of any place for the search of which he is competent to issue a search warrant। कुछ भी इसमें explanation के वर्दी नहीं है। Then section 104, part to impound documents etc produce। Any court may if it thinks fit impound कर सकता है कोई भी document या thing जो that has been produced before it under this code। Then section 105, reciprocal arrangements regarding processes। आज का ये last section होगा। Where the court in its territories to which this court extends thereafter in this section referred to as the said territories desires that summons to an accused person, warrants for the arrest of an accused person, summons to any person requiring him to attend and produce a document or a thing or to produce it, or a search warrant issued by it shall be served or executed at any place। बेसिकली बहुत ऐसे लग रहा है कि क्या सेक्शन है, बहुत लग रहा है कि दिमाग लग रहा है इसमें, इतना बेसिक सा है। मैं आपको सिंपल एंड शॉर्ट में बताती हूँ कि इस सेक्शन में क्या बोल रहे हैं। कि कोई भी कोर्ट जो इशू कर रहा है या समन्स या वारंट्स या समन्स टू प्रोड्यूस कोई ऐसा, जैसे हमने पढ़ा था समन्स टू प्रोड्यूस पर्टिकुलर थिंग या कोई डॉक्यूमेंट, बेसिकली कोई भी कोर्ट है उसको समन्स इशू करनी है, वारंट इशू करनी है या समन टू प्रोड्यूस अ थिंग किसी भी पर्सन के लिए, तो वो जो समन्स जो होगी दे शैल बी सर्व्ड एंड एग्जीक्यूटेड। वो कहाँ सर्व और एग्जीक्यूट किए जाएंगी? आइदर द समन्स और द वारंट और द समन्स टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर थिंग किसी भी कोर्ट लोकल जुरिस्डिक्शन में ऑफ अ कोर्ट इन एनी स्टेट। बेसिकली किसी भी स्टेट में इंडिया के आप क्या करोगे, वो जो पर्टिकुलर समन वगैरह है उसको आप सर्व या एग्जीक्यूट कर सकते हो इंडिया के किसी भी स्टेट में। ये बोला गया है हमारे सबसेक्शन 1 में। फिर ये भी बोला गया है कि, और हमने इफ़ यू रिमेंबर हमने इससे पहले पढ़ा था कि जो लोग उस दूसरी लोकल ज्यूरिसडिक्शन जो वो कोर्ट होगा जहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई पर्सन रिजाइड करे, आपको उनको समन भेजनी है, उसका प्रोसीजर क्या होगा, आपको किन वहाँ के कोर्ट में कैसे भेजना होगा, वहाँ का तामीली कैसे एक्ट करेगा, ये सब हमने पहले पढ़ा था। बेसिकली यही बोला गया विद इन द लोकल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ अ कोर्ट इन एनी स्टेट, किसी भी स्टेट में, और ऑफ एरियाज आउटसाइड इन इंडिया आउटसाइड द सेड टेरिटरीज इट मे सेंड सच समन्स और वारंट इन डुप्लीकेट। तो क्या करेगा ये, पहले ये डुप्लीकेट भेजेगा बाय पोस्ट, ये इंपॉर्टेंट है, डुप्लीकेट बाय पोस्ट, duplicate by post or otherwise to the presiding officer of the court to be served or executed, and where any summons referred to in clause A या clause C has been so served, the provisions of section 68 shall apply in relation to such summons as if the presiding officer of the court to whom it has been sent were a magistrate in the said territories। basically उस एरिया के presiding officer को आप by post एक डुप्लीकेट कॉपी भेजोगे या उस वारंट की या उन समन्स की। अगर अब कोई और कंट्री है, इफ़ इट इज़ आउटसाइड द स्टेट, अगर ये स्टेट के आउटसाइड बेसिकली इंडिया के आउटसाइड अगर है, तो अगर वो कोई कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट होगी इन एनी कंट्री और प्लेस आउटसाइड इंडिया इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द अरेंजमेंट्स हैव बीन मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट विद द गवर्नमेंट ऑफ सच कंट्री, बेसिकली वो एक कॉन्ट्रैक्टिंग कंट्री होगी, और अ प्लेस फॉर सर्विस और एग्जीक्यूशन ऑफ समन्स और वारंट इन रिलेशन टू द क्रिमिनल मैटर्स
hereinafter in this section referred to as contracting state, it may send such summons or warrant in duplicate in such form directed to such court, judge or magistrate and sent to such authority for transmission as the central government may by notification specify in this behalf. अब हमने इस सेक्शन में मैं आपको बहुत समराइज करके बता दूं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा. अगर कोई वारंट है, अगर कोई समन्स है या समन्स टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है या अ थिंग है और आपको ये इशू करनी है, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जो कोर्ट इशू कर रहा है उसकी लोकल ज्यूरिसडिक्शन में फॉल नहीं करता आइदर दैट पर्सन जिसके लिए वारंट्स इशू हुई है या वो पर्सन जिसके लिए समन्स इशू हुई है या जिस पर्सन को आपको समन्स टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर थिंग करनी है. तो इसमें दो सिचुएशंस आ सकती हैं, या वो विद इन इंडिया हो या वो आउटसाइड इंडिया हो. अगर अब विद इन इंडिया होगा बट नॉट विद इन द लोकल ज्यूरिसडिक्शन, तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, दिस इज नॉट विद इन द लोकल ज्यूरिसडिक्शन बट ये विद इन कंट्री है. पहला सिचुएशन ये होगा. तो वो जो कोर्ट होगा आप उनके प्रिजाइडिंग ऑफिसर को इन डुप्लीकेट क्या भेजोगे, मतलब एक कॉपी भेजोगे बाय पोस्ट. एंड बिल्कुल जैसे हमने सेक्शन 68 में पढ़ा था कि कैसे एग्जीक्यूट वगैरह होंगे इफ इट इज़ आउटसाइड द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट, तो वैसे ही बिल्कुल ये सारा एग्जीक्यूट होगा. अगर अब आउटसाइड इंडिया होगा, दूसरा हमारे पास है आउटसाइड इंडिया, देन इन सच अ सिचुएशन स्पेशली इफ दैट कंट्री इज अ कॉन्ट्रैक्टिंग कंट्री, तो वो वहाँ के जो कोर्ट, जज और मैजिस्ट्रेट होंगे आप उनकी अथॉरिटी को भेजेंगे और वो एग्जीक्यूट करेंगे वो पर्टिकुलर वारंट, समन्स या समन्स टू प्रोड्यूस अ थिंग. वेयर अ कोर्ट in the said territories has received for summon or execution, कोई अब अगर किसी कोर्ट को इन द सेड टेरिटरी, जो हमने दो पहले तो पढ़े कौन कौन सा, आउटसाइड या विद इन इंडिया, कोई समन वारंट या समन टू प्रोड्यूस अ पर्सन रिक्वायरिंग हिम टू अटेंड प्रोड्यूस अ थिंग या सर्च वारंट, द कोर्ट इन एनी स्टेट. अब इस कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी कि जिसको ये इशू हुई है, जिनको डुप्लीकेट में बाय पोस्ट भेजा गया है, outside the said territories, a court, judge, magistrate in a contracting state, it shall cause the same to be served or executed as if it was summons or warrant received by him by another court in the said territories for some service or execution within its local jurisdiction. And where a warrant of arrest has been executed, person arrested shall so far as possible be dealt in accordance with the procedure prescribed under section 80 or 81. बेसिकली यही बोला गया, वो ऐसे ही इससे डील करेंगे जैसे कि उनके किसी लोकल कोर्ट ने ये इशू किया होता. A search warrant has been executed. The things found in search shall so far as possible be dealt with in accordance with the procedure prescribed under 101. आप उसी कोर्ट में वो भेजोगे जिसने वो सर्च वारंट इशू किया था, या अगर वो पॉसिबल नहीं है जो नियरेस्ट पॉसिबल मैजिस्ट्रेट होगा आप उनके पास वो लेके जाएंगे. एंड अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर है एंड ही इज़ नॉट इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, तो वो रिपोर्ट करेंगे अपने सीनियर को या सुपीरियर को. Provided that in a case where the summons or the search warrant received from a controlling state has been executed, the documents or the thing produced or the things found in the search warrant search shall be forwarded to the court issuing the summons or search warrant through such authority as the central government may by notification specify in this behalf. इतना आई होप आज के लेक्चर में आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा. दे लुक वेरी लेंथी, स्पेशली 105 बहुत लेंथी सेक्शन लगता है, बट ये काफ़ी ईजी है समझने के लिए. आई होप आपका अगर कोई भी डाउट होगा वो मैंने क्लियर किया होगा. इफ देयर इज एनी डाउट यू वांट टू आस्क मी एनी क्वेश्चंस, आप मुझे मेरी जीमेल पे भी ईमेल कर सकते हैं. प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड थैंक यू सो मच फॉर tuning in.